Nestled in the heart of northern India, Haryana is a dynamic state with a population exceeding 27 million. Haryana is strategically located between the Aravalis and the Yamuna River, giving it fertile plains and the title of India's food bowl. Bordering the capital city of Delhi, Haryana has less than 1.4% of India's land mass. Haryana is home to 22 districts, 154 cities and towns, and over 7,000 villages. From the bustling streets of Gurugram to the historic town of Kurukshetra, Haryana is a state where mythology, agriculture, and innovation shape a unique identity, an epicenter of India's growth and cultural evolution. Hailing from the Mangoli Jatan village of the ancient land of Kurukshetra, Nayab Singh Saini was sworn in as the Chief Minister of Haryana on 17th October 2024. Here's how the state is progressing under his leadership. Chapter 4 of the Haryana Progress Report examines the impact of the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana was launched in February 2016 to provide financial protection to India's farmers against crop loss. The PMFBY covers natural disasters like droughts, floods, hailstorms, landslides, and crop loss due to pests and disease. The first arm of the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana is an affordable premium which ensures access to insurance for all. The second arm of the Bima Yojana is quick compensation by processing insurance claims within 2 months. Essentially, the scheme protects farmers against natural disasters, calamities, and debt traps. हमारा किसान कितनी ही मेहनत करे, लेकिन जब प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है, पानी में बह जाती है, किसान बर्बाद हो जाता है। अधिक बारिश आ जाए तो भी किसान दुखी, कम बारिश आ जाए तो भी किसान दुखी, नदियों में ज्यादा पानी आ जाए तो भी किसान दुखी, ज्यादा फसल हो जाए तो भी किसान दुखी, कम फसल हो जाए तो भी दुखी। इस किसान की रक्षा कैसे करेंगे भाइयों बहनों? और इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हम लाए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और उसमें किसान को बहुत कम पैसा देना है, बहुत कम देना है। भारत सरकार पैसे देगी और आपकी फसल को कोई भी प्राकृतिक नुकसान होगा तो उस किसान को बीमा योजना से पूरा का पूरा पैसा मिलेगा भाई। इतना ही नहीं, आपने तय किया हो कि जून महीने में बुआई करनी है, लेकिन बारिश नहीं आई। आपने सोचा जुलाई में करेंगे, फिर भी बारिश नहीं आई। आपने सोचा अगस्त में करेंगे, फिर भी बारिश नहीं आई। पानी नहीं आया तो बुआई कहां करोगे? और बुआई नहीं की तो फसल कहां होगी? और फसल नहीं होगी तो फसल बर्बाद भी कैसे होगी? तो ऐसी स्थिति में किसान क्या करेगा? जिसकी बुआई नहीं हुई उसको तो फसल नहीं आनी, तो फसल बीमा लगना नहीं है। पहली बार देश में दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है, इसने ऐसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाए हैं कि प्राकृतिक आपदा के कारण अगर बुआई नहीं हुई तो भी उसका हिसाब लगाकर उसको मिनिमम बीमा का पैसा दिया जाएगा। Since the launch of the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana in 2016, farmers in Haryana have received compensation worth rupees 8,804 crores in 8 years. In 2024, 3,73,871 farmers were insured for the Kharif season in Haryana under PMFBY. A total of 6,027 insurance units were created in Haryana in 2024. In the same year, a total of rupees 244.53 crores in claims were processed and settled under PMFBY in Haryana. Farmers in Haryana received a total compensation of rupees 652.56 crores under the scheme in 2024. While the numbers tell us a part of the tale, the real story lies in the lives of the farmers who have been impacted. Let's hear what the beneficiaries have to say.
This is Birheda village. It is located in the Farokh Nagar Tehsil of Gurgaon district in Haryana. Spanning over 220 hectares, the fine and nutrient-rich soil has made agriculture the main source of income for the residents of Birheda. Focusing on the Kharif and Rabi sowing seasons, the farmers here have decades of experience. However, what they can't control are natural calamities and conditions. This is how the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana has become a boon for the farmers of Birheda. मैं 2016 से पीएम किसान के साथ जुड़ा हुआ हूँ और 2016 से ही बीमा करा रहा हूँ। पहली बार मेरा 1 एकड़ का करा रखी थी मैंने पॉलिसी, तो पहली बार मेरे 1 एकड़ का 5,000 रुपये आए थे। बाकी मैंने खेती 4 एकड़ में कर रखी थी, पर मेरी पॉलिसी 1 एकड़ की थी, तो 1 एकड़ का मेरे पैसे आए थे। दूसरी बार मैंने 2 एकड़ में करा रखी थी 2019 में, तो उस टाइम भी बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण फसल ख़राब हो गई थी, तो उस टाइम 2 एकड़ के पैसे आए थे। अभी 2024 में मैंने 4 एकड़ के करा रखी थी, तो अभी मेरे 4 एकड़ के पैसे आए हैं। कितना टोटल अब तक आप फायदा ले? टोटल ये लगा लो लमसम 70 से 80 हज़ार रुपये। बहुत अच्छी योजना है जी, और मैं तो किसान साथियों से यही आग्रह करता हूँ कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कराए, इसका लाभ उठाए। तो उस समय तो जी सिवाय मायूसी के कोई नहीं था हमारे पास, मायूसी थी किसान के पास। और अब तो एक ऐसा है कि अगर हमारी फसल ख़राब हो गई तो हम कहीं भी जा सकते हैं। देखो, शुरुआत में तो ज़्यादा जानकारी नहीं थी, शुरुआत में तो केसीसी बेस पे थे ये। उसके बाद जैसे क्या था उस टाइम, तो जो किसान क्रेडिट कार्ड था वही फार्मर करा सकते थे। उसके बाद सरकार ने पॉलिसी में चेंज किया, तो जो भाई जो ठेके पे लेके ज़मीन बो रहे हैं, अब वो भी इस पॉलिसी का लाभ उठा रहे हैं। जैसे अभी ये खरीफ का सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो अभी मतलब वो डर नहीं है मन में कि भाई कपास में खर्चा लगता है बहुत ज़्यादा। ये मान लो आपकी स्टार्टिंग 10,000 रुपये से है, और लास्ट तक जाते जाते तो आप 18-20 हज़ार रुपये लगा चुके होते हैं एक खेत में, 1 एकड़ में। तो अभी वो डर नहीं है कि भाई अगर कहीं फसल ख़राब हो गई तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। अभी कुछ उम्मीद है कि सरकार अच्छी है, सरकार बैठी है, भाई सुनेगी। पहले क्या था कि इससे पहले जो सरकार थी उसमें कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई सरकार ने, और जो अभी जो सरकार है इसने ये पॉलिसी बनाई है, तो इसमें क्या है कि जो भी किसान है और जो खर्चा लगाता है, अगर उसकी फसल नष्ट हो जाती है तो वो मायूसी की तरफ नहीं जाता, उसको दिखता है कि भाई हाँ कुछ ना कुछ तो हमको मिलेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से मैं 3 बार फ़ायदा ले चुका हूँ जी, 2019 में, 2022 में और 2024 में। 2019 में तो सर मैंने मिला था 4,000 रुपये एकड़ के हिसाब से, 2 किले का केसीसी था मेरा। और 2022 में मिला मुझे 10 से 12 हज़ार रुपये के आसपास 1 एकड़ का। और 2024 में मिला मुझे 15,000 रुपये एकड़ का हिसाब से, तो ये लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये के आसपास मुझे मिल चुके हैं। क्या हुआ था आपकी फसल में जब आपने मुआवजा लिया? सर उसमें अत्यधिक बारिश के कारण जल भराव हो गया था खरीफ में, तीनों बार में ही। हमारे यहाँ चिकनी मिट्टी है, और चिकनी मिट्टी में अत्यधिक बारिश के कारण वो ख़राब हो गई थी। बाकी 2019 में हमने पता चला, और हमने सर्वे के लिए जैसे अप्लाई किया, बैंक में गए, पता किया कि हमारा प्रीमियम कटा हुआ है कि नहीं है, तो उन्होंने तुम्हारा प्रीमियम कटा हुआ, हमने अप्लाई किया, तो वहाँ पे हमें 4,000 रुपये एकड़ के हिसाब से बीमा मिला था। इसमें सर किसी की एक आदमी की लिखत को कोई महत्व नहीं है, ये सब ऑनलाइन है, ऑनलाइन ही गिरदावरी होती है, ऑनलाइन ही सर्वे होती है, सब चीज़ों का प्रूफ होता है, किसान के पास भी प्रूफ होता है, और जो अधिकारी सर्वे करने आते हैं उनके पास भी प्रूफ होता है। उसमें धांधली का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो सीधा खाते में आता है कि सीधा खाते, या कोई बिचौलिया भी होता नहीं सर, सीधा खाते में पैसा आता है, नहीं कोई बिचौलिया, नहीं कोई 72 घंटे के अंदर अंदर सर्वे करवाओ और अपना मुआवजा पाओ। जैसे 25 साल से मैं ये किसानी कर रहा हूँ, तो लगभग हमें 2019 से ये 5-7 साल से मुआवजा मिलना शुरू ना। पहले तो हमने खूब, हमारी 2-3 बार ऐसी फसल हो गई थी जिसमें एक दाना भी नहीं उठाया और वो सारी फसल ख़राब हो गई। उस समय ये होता था नुकसान हो गया जी, कोई 1 रुपये मुआवजा, 2 रुपये मुआवजा मिला हुआ है हमें। अब अगर जो कोई नुकसान होता है, जितना नुकसान हुआ है उतना ही आकलन करके सरकार मुआवजा देती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जी मैं 2016 में जुड़ा था, अब तक मैं 3 बार फ़ायदा ले चुका हूँ, 2019 में, 21 में और अब की बार 2024 में। मैं लगभग 2.5 लाख रुपए अब तक ले चुका हूँ जी। यहाँ हमारे यहाँ चिकनी मिट्टी है, ज़्यादा बारिश के कारण हमारे कपास डूब जाती है, पानी ज़्यादा भरने से ख़राब हो जाती है।
और हमें इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मदद मिलती है। 2019 में जी मेरे को पर एकड़ 5,000 रुपये मिले, उस टाइम हो गया मेरा 50,000 रुपया। 2021 में मेरे को पर एकड़ 8,000 रुपये के हिसाब से मिले, 80,000 तब हुए। और अब की बार पर किले के 12 से 13,000 रुपये मिले। जब बारिश होती है तो हमको 72 घंटे के अंदर सूचना देनी पड़ती है कृषि विभाग को, और हमारे यहाँ सर्वे आती है और उसमें कृषि अधिकारी भी हमारा मदद करते हैं। पहले तो फसल बीमा योजना थी नहीं जी, किसी सरकार ने आज तक ये योजना ही नहीं बनाई थी। ये तो मोदी सरकार ने बनाई है 2016 में। मैं तो कहता हूँ जी बीजेपी सरकार किसानों का हित की सरकार है जी। हमारे नायब सैनी भी किसानों की बहुत मदद करते हैं और मोदी जी भी। देखो जी पहले नुकसान होता था तो भुगतना पड़ता था जी, मायूस तो होना ही पड़ता था। किसी सरकार से कोई 1 रुपये की कोई उम्मीद नहीं होती थी। अब जी ऐसा है कि हमने अपना ये बीमा कराया हुआ है, इससे हमें अच्छी खासी मदद मिल जाती है। मैं तो सभी किसान साथियों से ये कहना चाहता हूँ जी बढ़ चढ़ कर इसमें भाग ले और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कराए। सरकार से मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ जी, और किसानों की मदद की सरकार है और आगे भी ऐसे करती रही। इस योजना से मैंने 2 बार लाभ लिया है, 2021 में और 2024 में। 2021 में मेरे 2.5 एकड़ का 7,000 रुपये प्रति एकड़ आया था और 2024 में 12,000 रुपये 2.5 एकड़ का प्रति एकड़। प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना बहुत अच्छी है सबके लिए, सब किसान भाई करवाए, जिन नहीं करवा रखी वो भी करवाए। 1 एकड़ में 10 से 12,000 रुपये खर्चा आता है। भरपाई बहुत परसेंटेज के ऊपर है, जितना नुकसान होगा उस हिसाब से मिलता है। किसान बहुत खुश है प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा की योजना से। पहले और सरकार में कहीं पे जाने का राह नहीं था, इस सरकार में जाने का रास्ता है बीमा कराने के बाद। This is Narendra Singh, a farmer in Faridabad's Mohalla village. He has 6 acres of land on which he cultivates wheat, paddy and mustard. Due to excessive rain, his paddy crop has been damaged twice in 2021 and 2022. However, since Narendra Singh has been enrolled in the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana since 2016, he received compensation worth Rs 12,000 per acre of land for suffering crop loss for 2 consecutive years. सरकार ने जो स्कीम चलाई है फसल बीमा की, उसका हम फ़ायदा ले रहे हैं, लोगों को भी अवेयरनेस कर रहे हैं, हम इससे जागरूक करते हैं। और काफ़ी समय से मुझे कई बार इसका फ़ायदा मिल चुका है, स्कीम का भी। 2016 से इससे हम जुड़े हुए हैं। कई बार हमारी प्राकृतिक आपदा जो होती है उनसे कई बार हमारा नुकसान हुआ है और उससे सरकार ने हमारी भरपाई की है। जब भी नुकसान हुआ है तभी हमने अपने प्रक्रिया जो कागजी कार्रवाई होती है पूरी की है। दफ्तर में जाकर हमने शिकायत की है उसकी। वहाँ से जो कमेटी का चयन होता है वो कमेटी ने आके खेतों पर सर्वे किया है। उस सर्वे के आधार पर जो भी हमारा मुआवजा बनता है वो सरकार ने हमें प्रोवाइड करवाया है। तो मैं सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि सभी किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस स्कीम से जुड़ें और इसका लाभ उठाएं, क्योंकि जितनी भी प्राकृतिक आपदाएँ होती हैं इनका और कोई समाधान हमारे पास नहीं है। इसका यही एक समाधान है कि आप एक तो फसल बीमा ज़रूर कराएं और इसका लाभ लें। ये सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम हमारे लिए चलाई हुई है। सरकार ने जो स्कीम चलाई है इसके लिए मैं हिंदुस्तान के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने स्कीम चलाई है और सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम का किसान भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। Satpal is a 72-year-old farmer who has been farming for the past 5 decades. A father of 4 sons, the yield from his land has sustained his family through the years. Satpal enrolled in the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana in 2018 and took out insurance in 2022 when he lost 4 acres of wheat to excessive rainfall. He had no such remedy earlier. मैं फसल बीमा योजना से काफ़ी दिन से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे कई बार मुआवजा मिला। जैसे मेरा खेतों में नुकसान हुआ उसी हिसाब से जब भी मेरे खेतों में नुकसान हुए, 4 एकड़ ज़मीन है मेरे पे, मुझे तो बढ़िया फ़ायदा मिला हुआ है। बढ़िया कहेंगे जी, बहुत बढ़िया काम, मतलब बढ़िया बीमा। और हमारे एग्रीकल्चर वाले सब सही है, टाइम पे मतलब आते हैं, सर्वे करते हैं और देखभाल करते हैं। मतलब हमारी बहुत बढ़िया सरकार बढ़िया कर रही है।
एक जब हमारी फसल खराब हो जाती है तो हमें मतलब कम एवरेज आती है, कुछ हमारा गेहूँ होता है, कुछ बीमा मिल जाए, हमारी मतलब पूरी भरपाई हो जाती है। 22 में हमें 24,000 कच्छ मिले 4 एकड़ के। 22 के पीछे नुकसान नहीं हुआ हमने हमारा, वैसे बीमा हम कटवा में हर साल। नायब सैनी मतलब हमारे किसानों के लिए बढ़िया सोच रहे हैं, उनका धन्यवाद। सरकार किसानों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे यहाँ पे गेहूं की, धान की खेती अधिक होती है, कुछ सरसों की भी खेती होती है। आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी किसानों के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं। और जो किसान भाई नहीं करवा रहे वो भी आगे करवाएं, हमारी तरह फ़ायदा उठाएं खेती का। बीमा नहीं करवाते वो कुछ भी फ़ायदा नहीं उठा सकते सरकार का। जो नुकसान हो जाएगा उसका फ़ायदा सरकार आपको बहुत ही अधिक फ़ायदा देती है। फसल अच्छे टाइम से नहीं हो पाती तो उसकी हानि के कारण उस मजबूरी में किसान को ज़मीन अपनी बेचनी पड़ती है। इसलिए सभी भाई फसल बीमा कराएं, इसका फ़ायदा लें। कुछ भी ओलावृष्टि या कुछ बरसात, आंधी तूफान उसकी वजह से होती है तो सरकार उसका फ़ायदा देती है। हमको पोर्टल पे जाके वो कंप्लेंट डालनी होती है और उसके बाद हमारे 2-3 दिन बाद हमारे सर्वेयर आते हैं सरकार की तरफ से और प्राइवेट की तरफ से, दोनों हमारा जायज़ा करके लेके जाते हैं। वो परसेंटेज देख के और जब किसान की भरपाई के लिए आगे पैसे देते हैं। पहले आंधी ओला गरियाँ सरियाँ ऐसी हो जाती थी तो किसान को कोई भरपाई नहीं मिलती थी। अब ये सरकार बहुत अच्छी है, इसने मतलब जो बीमा करा लेता है उसको खर्चा पानी जैसा लॉस होता है, जैसा एकड़ पे खर्चा आता है वैसा ही देती है। अगर ये नहीं था जब ज़मींदार को घाटा ही रहता था, ज़मींदार अपने लॉस में रह जाता था, कोई सरकार कुछ नहीं देती थी। इसलिए ये सरकार बहुत अच्छी आई है। इसने जो बीमा योजना चलाई है, इस बीमा योजना से हमें काफ़ी मदद मिली है। जो हमारा खेती में लॉस हो जाता है उसकी भरपाई कर देती है ये सरकार। 1-2 बार ही मिला है, जब से बीमा कराने लगा हूँ तब से ही मतलब मुझे फ़ायदा मिलने लगा है। कभी फसल में कुछ लॉस हो जाता है, कभी ओले पड़ जाते हैं, कभी बारिश तेज़ हो जाती है, आंधी हवा तेज़ आ जाती है तो वो पानी में लौट जाता है। ऐसे कई बार फसल ख़राब हो जाती है। उस फसल ख़राब होने के उससे किसान को घाटा पड़ जाता है। ये सरकार थोड़ी बहुत सुविधा दे देती है। This is Rajpal Chauhan and his wife Usha. They are farmers in the Gugana village of Haryana. Rajpal and his wife have been farming for the past 30 years. Today they have 15 acres of land where they sow wheat and cotton. Here's how the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana has become a boon for this couple. प्रधानमंत्री फसल योजना के तहत मैंने 5 बार इसका फ़ायदा लिया है। मैंने शुरुआत में जब ये 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये लॉन्च की थी तो उससे दूसरी साल ही नेक्स्ट साल मैंने अपनी फसल का बीमा कराया था। इसका 3,02,000 का मुआवजा मिला जब मैंने 12 एकड़ की फसल की हुई थी और वो बारिश की वजह से फसल नष्ट हो गई थी, ज़्यादा बारिश जल भराव होने के कारण। क्योंकि कपास की फसल में ज़्यादा पानी भरने से 1 हफ्ता पानी भर जाता है तो ख़राब हो जाती है। 2021 में 76,000 रुपये मिले, 22 में मुझे मिला 3.5 लाख रुपए, उसमें भी एवरेजिंग का था, 50% एवरेजिंग का था। और अब की बार मेरा अभी फसल बीमा आया तो नहीं है, गांव के लोगों का लिया, लेकिन मैंने ऑनलाइन चेक किया था, अब की बार भी नुकसान था हमारी उसमें। 1,90,000 रुपये हमें अब की बार मुआवजा है मिल रहा है। पहले की सरकारों पे किसानों पे ध्यान नहीं दिया जाता था और जो लोग आज किसानों के हितैषी होने का ढोल पीट रहे हैं, मैं जिम्मेवारी से कहता हूँ कि मेरा बैंक अकाउंट चेक करो। इन सालों में मुझे 10 लाख रुपए की सहायता मिली है माननीय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। और पहले भी मेरा अकाउंट था, पहले भी चेक मिलते थे। और मैं ये कहता हूँ मेरे पिताजी से लेकर पिछले कम से कम 50 वर्षों में भी हमें कभी 1 लाख रुपए नहीं मिले। और हमारी फसल तो आपको पता है पहले भी खराब होती थी। Farmers of Haryana's Gugana and Batrohan villages share their experience with the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. How exactly have their lives improved? Listen in.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है सर, मैं 3 बार फ़ायदा ले चुका हूँ। अब तक मेरे पास 3,50,000 रुपये के करीब अब तक आ चुके हैं और योजना बहुत बढ़िया है जी। इस योजना से जी मैं सन 2016 से जुड़ा हूँ। जब से ये योजना प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी, जब से हम किसान इससे जुड़े हुए हैं। केसीसी के माध्यम से लगा लो या कैसे भी लगा लो, हम इस योजना से पूरा लाभ उठा रहे हैं। जब से योजना में लाभ जब भी मिलता है, कुछ फसल में भी नुकसान होगा तो योजना में लाभ मिलेगा। 2020 में हमारे नुकसान हुआ था, फसल में बारिश के कारण हुआ था, तो उसका लाभ मुझे मिला है। क्रॉप कटिंग में 30,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मेरे को क्लेम मिला और 2022 में भी मेरे को इस नुकसान का मुआवजा मिला है जी। और अब 2024 में कपास की फसल में मेरे को नुकसान हुआ था, उसमें 20,800 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिला है। पहले की सरकारों में कभी कुछ नहीं मिला जी। 5 रुपये मिल गए, 10 रुपये मिल गए, उनके ऊपर भी चेक मिलते थे, वो भी अकाउंट में लगाओ, बुरा हाल रहता था जी। अब सीधी योजना किसान के अकाउंट में आती है जी, सारे पैसे खाते में आते हैं जी। सर्वे करने के लिए बंदे आते हैं, कुछ लड़के, वो सर्वे करते हैं और डॉक्यूमेंट जमा कर देते हैं। खेत में फ़ोटो हो जाती है जी, उसके बाद सारे पैसे खाते में आते हैं। अगर मान लो पहले कुछ नहीं मिलता था, चाहे बीमा करवाया ना करवाया, अब मान लो किसान को घर बैठे मिल जाए तो बहुत फ़ायदा होता है जी। बीज में सहायता होती है, घर परिवार चलाने में सहायता होती है, खाद लाने में सहायता होती है जी। किसान के ऊपर तो फसल का ही ऊपर सारा फसल का ही रहता है जी। मेरा नाम सरताज सिंह, गांव घुगाना। मैं प्रधानमंत्री बीमा योजना से 16-17 से जुड़ गया और मुझे 3 बार फ़ायदा मिला है। एक बार 1 लाख के करीब, एक बार 3 लाख और एक बार अब जो मिला है वो 1,90,200 रुपये में। 2019 में 1 लाख के करीब मिला था, जो कपास की खेती थी। उसके बाद भी 2022 में भी कपास की खेती थी, उसमें मिला है 3 लाख के तकरीबन 3 लाख रुपए। और उसके बाद में 25 अब जो मिला है, नुकसान 24 का है और पैसा मिला है 25 में 1,90,200 अकाउंट में आया है। किसानों के लिए जी बहुत अच्छी है ये, इससे जीवन मिला है जी। नहीं तो हमारी उसी टाइम ज़मीन बिक जाती, जो अगर ये सहायता नहीं मिलती तो सब ज़मीन वहीं कर्जे में डूब जाती। पहले की सरकार में कभी मुआवजा नहीं मिलता था, नुकसान हो जाता मुआवजा नहीं मिलता। अब तो ये होता है कि नुकसान हो भी जाता है तो भाई सरकार जो है भगवान के रूप में बैठी है, वो हमारा भाई नुकसान नहीं होगा और नुकसान की भरपाई सरकार कर देगी। तो सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है ये, जो किसान के लिए इससे बढ़िया कोई काम नहीं है। अगर ये नहीं हो तो फिर किसान तो आज से नहीं, पहले से डूबे हुए कर्जे। बहुत बदलाव हो गया। अब तो ये तो है कि भाई जब सरकार जो कोई नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई हो जाती है, तो बहुत बदलाव है। अब तो आदमी ये तो नहीं एकदम कर्जा में डूब जाए। कुलदीप सिंह, सन ऑफ अमर सिंह, गांव बटरोहन का रहने वाला हूं। मैं यहां पर खेती बाड़ी का काम करता हूं। 2015 से फसल बीमा कट रहा है। हमें जब भी कभी कोई नुकसान होता है, हमें उसकी भरपाई ज़रूर होती है सरकार की द्वारा। जो मोदी सरकार ने ये स्कीम चलाई है, बहुत उसका बेनिफिट मिलता है। क्योंकि जब फसल ख़राब हो जाती है, किसान कहाँ जाए, कौन किसके पास जाए, पटवारियों के धक्के नहीं खाने पाते, कोई लेना नहीं देना नहीं है, कोई हमें खज्जल ख्वार नहीं होता, हमारे सीधे खाते में पैसे आ जाते हैं। बिचौलिया नहीं है कोई, जो भी सरकार देगी तो हमारे खाते में सीधा आ गया, हमारे लिमिट के खाते में आ जाएगा। एक बार 7,000 मिला था, 5,000 मैक्सिमम 5,000 4,000 मैक्सिमम मिलता रहा है। खर्चा तो निकल जाता है, जो फसल पर खर्चा होता है ना, वो तो हमारा पूरा हो जाता है ना, अगर पैसा सरकार देती है। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहेंगे इस बात के लिए भी कि इस स्कीम को रेगुलर चलाया जाए, ना कि बंद की जाए। मेरा नाम सतपाल है, गांव बटरौल से। मैं गेहूं और जीरी की फसल करता हूं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत अच्छी स्कीम है जी। पहला मानो कभी नहीं मिला जी पैसा, जो पटवारी को जानते थे उन्होंने मिले करा था जी। अब हम अपने आप ही जाकर वहाँ 72 घंटे में अप्लाई कर देते हैं और बहुत बार आता ही है तकरीबन। कई बार बहुत अच्छे 50,000 60,000 70,000 भी आए जी मेरे। जब भी कोई ओलावृष्टि कुछ भी होती है तो पैसे मिलते ही हैं। अब नेयर में हमारे पंजाब है, वहाँ मिलता ही नहीं कुछ भी, वो हम देखते हैं वहाँ भी नुकसान तो बहुत ज़्यादा होता है। वो कहते हैं हरियाणा में बहुत अच्छा है जी। चलती रहनी चाहिए जी ऐसी चीज़ जिसमें हर एक बंदे को फायदा हो जाए। ये बात किसी गल बनती नहीं है, बड़े आदमी गल तो किसी को कुछ आता नहीं। इसमें नॉर्मल बंदा भी जाके अपना सब कुछ कर सकता है। मेरा नाम सुखजिंदर सिंह है जी। मैं गांव बटरौन का रहने वाला हूं। मैं 24 किले की खेती कर रहा हूं। मैं धान की और गेहूं की खेती करता हूं। जब से ये प्रधानमंत्री बीमा योजना चली है
तो तब से हम इसका लाभ उठा रहे हैं। जितने बारी भी जी हमारा ओलावृष्टि या बाढ़ के कारण फसल ख़राब हुई है तो हमको उतनी बार ही इसका लाभ मिला है जी। और जिस साल कभी फसल का झाड़ नहीं आता, कम आता है, तो तब भी हमको उसका फ़ायदा मिला है। जब भी ये पैसे आ जाते हैं, जैसे अगर 2000 रुपये की लाए या 5000 रुपये की लाए, तो इसका लाभ तो मिलता ही है जी। इसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सैनी का जी धन्यवाद करना चाहते हैं, और ये आगे भी लागू होनी चाहिए। The stories of the farmers of Haryana are a testament to the Haryana government's commitment to fulfill the promise of the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana under the leadership of Chief Minister Nayab Singh Saini. This is Haryana's success story.